مسجد، وہ آ جائیں اور اپنے یہ پوئم پیش کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ اہم پروگرام آپ کے سامنے آئے گی۔ کوشش یہ تھی کہ اچھے سے اچھا ساؤنڈ رکھا جائے، لیکن وہ بہرحال مشین ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہی انسان کی بھی یہی خدا کی طرف سے فطرت رکھی گئی ہے کہ نہ جانے کب کیا ہو جائے، کس کے ساتھ کیا مسئلہ پیش آ جائے۔ مشین ہے بہرحال، اس میں جو کچھ ہوا پیش کریں گے NPB اسکول کے۔ سب بیٹھ جاؤ اسکول کے۔ دیگر ہمارے مہمان ہیں مفتی ظہیر الدین صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ شروع کرو، چلو شروع کرو، چلو۔ ہم ملک میں پڑھ لکھ کر اچھے اچھے کام کریں گے، سارے جگ میں نام کریں گے، علم کریں گے اونچا حاصل اور پھر اس کو عام کریں گے۔ میرے امی ابو رہتے بہت پریشان، پڑھ لو بچوں، کر دو تعلیم کو عام۔ محنت سے ملتی ہے راحت، محنت صبح شام کریں گے، نہیں رہے گا اب کوئی بے تعلیم، یہی ہمارا پیغام۔ السلام علیکم۔ جگ میں نام کریں گے، علم کریں گے اونچا حاصل اور پھر اس کو عام کریں گے۔ میرے امی ابو رہتے بہت پریشان، پڑھ لو بچوں، کر دو تعلیم کو عام۔ محنت سے ملتی ہے راحت، محنت صبح شام کریں گے، نہیں رہے گا اب کوئی بے تعلیم، یہی ہمارا پیغام۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اپنی امی ابو سے کچھ کہنا ہے۔ امی ابو، آپ دونوں میرے لیے عزیز ہیں اور آپ میرے لیے ایک قیمتی دولت بھی ہیں۔ آپ کے احسانوں کو جتنا بیان کروں کم ہے۔ آپ میری ساری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، میری چھوٹی سے چھوٹی خواہش کا خیال رکھتے ہیں۔ ابو، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ امی، آپ بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ امی، آپ میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں۔ میں سب سے اچھی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ اگر میں پریشان ہوتی ہوں تو آپ مجھے ہر پریشانی سے نکالنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اس پر مجھے ڈانٹتی نہیں، بلکہ سکون اور اطمینان کے ساتھ سمجھاتی ہیں اور اس غلطی کو دوبارہ نہ کرنے کی تاکید بھی دیتی ہیں، جس سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ امی، لیکن آپ کی کچھ باتیں مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی، جیسا کہ آپ دن بھر تو فیس بک اور واٹس ایپ پر بیٹھی رہتی ہو اور مجھے کہتی ہو کہ فون ہاتھ میں بھی مت لیا کرو۔ امی، آپ روزانہ مجھے اسکول کے لیے اٹھاتی ہیں اور اسکول کو روانہ بھی کر دیتی ہیں، لیکن مجھے لنچ باکس تیار کر کے نہیں دیتی۔ امی، جب میں اپنی سہیلیوں کو اپنی کلاس میں طرح طرح کی چیزیں لاتے ہوئے دیکھتی ہوں تو میرے دل میں بھی تمنا پیدا ہوتی ہے کہ کاش آپ بھی مجھے طرح طرح کی چیزیں بنا کر دیتی۔ اور لیکن جب میں آپ کو وہ چیزیں بنانے کے لیے کہتی ہوں تو آپ مجھے دلاسا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، میں بنا دوں گی، لیکن کبھی بنایا نہیں۔ امی، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ ڈانٹنے سے چھٹکارا پانے کے لیے مجھے کچھ پیسے دے دیتی ہیں، جس سے مجبوراً مجھے اپنے اسکول کے کینٹین سے ہی سموسہ یا پاؤ پر گزارا کرنا ہوتا ہے۔ امی، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ کو میری فکر ہی نہیں۔ ابو، آپ بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ ابو، آپ نے آج تک مجھے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں ایک لڑکی ہوں۔ آپ ہمیشہ مجھے بیٹے کی ہی طرح پیار دیتے رہے ہیں اور بیٹے کی طرح ہی مانتے رہے ہیں۔ ابو، آپ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ جب میں پریشان ہوتی ہوں تو مجھے ہر پریشانی سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری پڑھائی سے متعلق جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے مجھے سب چیزیں لا کر بھی دیتے ہیں، کبھی منع نہیں کرتے۔ لیکن ابو، آپ کبھی میری پڑھائی پر تو توجہ دیتے ہی نہیں۔ اگر ہمارے اسکول میں کوئی پروگرام یا کوئی اوپن ڈے رکھا جاتا ہے
तो आप उसमें शरीक तक नहीं होते, हमारी बुक्स वगैरह भी खोल कर देखते तक नहीं। अब्बू, मैं ये सोचती हूँ कि औरों के भी तो वालिदैन हैं, वो कैसे अपने बच्चों की खुशी के लिए वहाँ अपना वक्त निकाल कर आ जाते हैं। अगर आप मेरी हर ख्वाहिश की तरह ही मेरी पढ़ाई पर भी तवज्जो दें और मेरी हर ज़रूरत की तरह ही मेरी पढ़ाई का भी ख्याल रखें, तो मैं ये समझती हूँ कि शायद कि आप मेरी नज़र में एक बेहतर वालिदैन साबित होंगे। अस्सलाम इस वालेकुम। बच्ची से सुना आपने, दो बातें खास तौर से समझ में आई। एक बात तो ये समझ में आई है कि वालिदैन अक्सर वो काम जो खुद करते हैं बच्चों को करने से रोकते हैं। तो आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताइए ये बात, जो काम आप खुद करते हो और बच्चों को ना करने देते हो, क्या ऐसा है कि बच्चे रुक जाएंगे उस काम से? मिसाल के तौर पे एक शख्स बीड़ी पीता है और अपने बेटे से ये तमन्ना रखता है कि मेरा बेटा बीड़ी ना पिए, ऐसा कैसे हो सकता है? मुमकिन नहीं है। वालिदा है हर वक्त मोबाइल चला रही है मिसाल के तौर पर, और बच्चे से ख्वाहिश अपने बच्चों में इखलास पैदा करना है, उनको सही करना है, सही तरबियत उनकी करनी है, तो खुद सही होना पड़ेगा पहले। अगर हम खुद सही नहीं हैं तो बच्चों की सही तरबियत किसी भी तरह मुमकिन नहीं है। दूसरी बात ये समझ में आई कि कुछ चीजें वो हैं जो वालिदैन जबान से तो कहते हैं लेकिन अमलन नहीं करते। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून वाली बात है, कहते हैं और करते नहीं है। मसलन तुम्हारे लिए ये काम करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, बहुत से वादे बच्चों से करते हैं लेकिन हकीकत में नहीं करते उसको। तो अगर ऐसा यही सूरत हाल रहेगी तो बस बच्चे भी फिर जबान से सारे काम करेंगे, अमल से कोई कुछ करेगा ही नहीं। इस बच्ची ने ये शिकायत की, ये माशरे की हकीकत में शिकायत है। ऐसा नहीं कि इस बच्ची ने खास तौर से अपने वालिद से ये बात कही है, नहीं, ये सारे बच्चों की नुमाइंदगी है। तमाम बच्चों की तरफ से तमाम वालिदैन के लिए ये बात है कि तकरीबन सभी में ये बात पाई जाती है। इसलिए उस बात पर जरा घर जाकर ठंडे दिल से सोचें कि वाकई वो जो बात बच्ची कह रही थी वो हम में पाई जाती कि नहीं पाई जाती। इसी तरह की एक दूसरी बात है जो बच्ची पेश करेगी दूसरी, इसको भी जरा गौर से समाअत फरमाएं। मुझे अपनी अम्मी अब्बू से कुछ कहना है। अगर मेरे सामने दुनिया की तमाम दौलत और हर तरह की ऐश इशरत पेश की जाए तो मैं इन तमाम चीज़ों को ठुकरा कर आपके साथ रहना पसंद करूंगी, क्योंकि अम्मी मेरी ज़िंदगी में आप सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हो और अब मेरी ज़िंदगी आपसे ही शुरू और आप पर ही ख़त्म होती है। अम्मी, आपने मेरे जज्बातों को पहचाना, मुझे बहुत खुशी हुई, इसमें मुझे कोई बुरी बात नहीं लगती। लेकिन अम्मी, मैं आपसे एक बात बहुत दिनों से कहना चाह रही थी, बता नहीं पाई, लेकिन अब बताना पड़ रहा है। आप सभी मोहल्ले वाली औरतों को बुलाकर घर में मोहल्ले की पंचायत करती हो, कभी उसकी चुगली, कभी उसकी ग़ीबत, तो कभी उसका बदला लेने की साजिश। तो मुझ पर इसका क्या असर पड़ सकता है? लेकिन अपनी यह आदत छोड़ दी तो आप दुनिया की सबसे अच्छी अम्मा और मैं दुनिया की सबसे अच्छी बेटी कहलाऊंगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुना आपने इस बच्चे की ज़बानी? वालिदैन मॉडल नहीं है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चे का रोल मॉडल बने कि हमें करना क्या है, टारगेट तय करें, तरबियत के फार्मूले तय करें, तभी तो मॉडल वालिदैन साबित होंगे। दरअसल होता क्या है आमतौर से कि बच्चे अल्लाह ने इनायत फरमा दिए और बस जिस तरह ज़िंदगी गुजर रही सो गुजर रही, लेकिन उसके लिए कोई लाहिए अमल, कोई तरतीब, कोई सोच, कोई फिक्र वो चूँकि जहन में होती नहीं है, इसलिए बहुत सारे मसाइल पेश आते हैं। अब घर में दूसरी औरतों के सामने या दूसरे लोगों के सामने अपने बच्चे से मुताल्लिक कुछ बातें करे आदमी और बच्चे की इसमें हकारत होती हो तो उस पर क्या असर पड़ेगा उसकी ज़िंदगी पर, क्या सोचेगी वो बच्ची अपने वालिदैन से मुताल्लिक। इसलिए हर एक बात का, छोटी से छोटी बात का, बड़ी से बड़ी बात की फिक्र कीजिए और हर एक बात के बारे में सोचिए कि हम क्या कह रहे हैं, ज़बान से हम क्या निकाल रहे हैं। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में मशहूर है कि जब आप किसी से बात करते थे तो बात करने से पहले एक लम्हे के लिए तवक्कुफ फरमाते थे, रुक जाते थे 1 मिनट के लिए। लोगों ने मालूम किया कि हजरत आपका ये अमल समझ में नहीं आता कि आप जब भी किसी से बात करते हैं थोड़ी देर के लिए रुक क्यों जाते हैं। तो आपने फरमाया कि मैं इसलिए रुक जाता हूँ कि मैं ये देख रहा हूँ कि वो अल्फाज जो मैं ज़बान से निकालना हूँ, कहीं वो अल्फाज खुदा की यहाँ मेरी पकड़ का जरिया तो नहीं बनेंगे, कहीं वो अल्फाज मेरी नजात में आड़े तो नहीं आ जाएंगे, कहीं वो अल्फाज दूसरे को तकलीफ तो नहीं पहुँचाएंगे। ऐसे न जाने कितने अल्फाज हम अपनी ज़बान से बोलते हैं अपने बच्चों से मुताल्लिक। ऐसी मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पर एक बच्ची का हमारे स्कूल का ही वाक़या है।
ایک بچی کو لے کے اس کے والدین آئے, کوئی شکایت تھی اس کی کہ بچی مثلاً تعلیم میں انہماک نہیں ہے, وہ پڑھتی نہیں ہے, سبق یاد نہیں کرتی ہے, اس طرح کچھ باتیں تھی. لیکن اس نے جو جملہ اس کی والدہ نے اس کے لیے استعمال کیا, وہ من و ان تو نہیں پیش کر رہا ہوں میں, البتہ مثال کے طور پر بچی کا کچھ بھی نام ہے, اچھے سے اچھے نام ہوتے ہیں, کہ ارے یہ چڑیل, کیا لفظ بولا چڑیل, یہ پیدا ہو گئی ہمارے گھر میں, کیا اچھا ہوتا کہ میں اسی وقت اس کا گلا دبا دیتی جب یہ پیدا ہوئی. یہ اپنے بچے کے بارے میں بول رہا ہے آدمی, کیا اس سے اس کو محبت نہیں؟ حقیقت میں محبت ہے, وہ محبت کرتے ہیں, لیکن نہ جانے کیوں اس طرح کے الفاظ زبان سے نکالتے ہیں جس کا بہت الٹا اثر ہوتا ہے اس بچے کی زندگی پر. ایسی ایک بچی دوسری ہے جو اپنی شکایت لے کے کھڑی ہے, بلکہ شکایت تو غلط لفظ ہی غلط ہے شکایت کا, بچے کو کبھی شکایت نہیں ہوتی والدین سے, البتہ کچھ باتیں ہیں جو ذہن میں رہتی ہیں, وہ باتیں یہ کہنا چاہتے ہیں. جی بیٹا کہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ کہنا ہے. ابو آپ بھی میری لائف میں کسی سے کم نہیں, آپ بھی چاہتے ہیں میں زندگی میں آپ سے بھی آگے بڑھوں. اس بات کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب آپ نے مجھے میرے فیوچر میں IPS آفیسر بننے کی باتیں بتائی. اس وقت آپ نے میری بہت حوصلہ افزائی کی. مجھے آپ کا ایٹیٹیوڈ بہت پسند آیا, لیکن مجھے آپ سے ایک شکایت ہے, پلیز برا نہ مانیے. آپ بے وجہ مجھ پر شک کرتے ہیں, اور جب میں کہیں باہر جاتی ہوں تو آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے, اور میرے کلاس ٹیچر کو ہمیشہ فون کر کے میرے بارے میں پوچھتے رہتے ہو. میں یہ بات کئی دنوں سے بتانا چاہ رہی تھی پر بتا نہ سکی, اب مجبور ہو کر کہنا پڑ رہا ہے. ابو اگر آپ کو میری ان باتوں کا برا لگے تو معاف کر دیجئے, اور یہ ختم کر دیجئے. کیا آپ کو پتا ہے جب یہ بات میرے فرینڈس کو پتہ چلتا ہے تو میرا کتنا مذاق اڑاتے ہیں. اس سے میرے مائنڈ پر غلط اثر پڑتا ہے, اور میں اچھے تعاون سے پڑھائی نہیں کر پاتی. میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے اچھے تعلق سے پیش آیا کریں, تو آپ میری نظر میں سب سے اچھے باپ ثابت ہوں گے انشاءاللہ. یہ بات بھی سنی آپ نے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عام طور سے والدین یا سرپرست حضرات یا گھر کے بڑے لوگ بچوں پہ بلا وجہ شک کرتے ہیں کسی بھی معاملے کو لے کر. تو بلا وجہ کا شک تو کسی بھی طرح صحیح نہیں ہے اپنے بچوں پر. بہرحال بچوں سے انسان کو محبت ہے تو آخری درجے کی عقیدت ہوتی ہے, تو سوچیں اس کے بارے میں کہ بچے کی اگر کوئی بات ہماری سمجھ میں آ بھی رہی ہے, کوئی مسئلہ ہے بھی, تو اصلاح کیسے کی جائے. شک کو لے کر دوسرے لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں یا دوسرے لوگوں کے سامنے بتائیں اس کی باتوں کو, تو کیسا اس کی زندگی پر اثر پڑے گا. کیسا سوچے کہ بچے اپنے والدین کے بارے میں, کیسا سوچتے ہیں میرے والدین میرے متعلق. پہلا لفظ اس بچی نے استعمال کیا کہ آپ میری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ ہیں, سب سے اچھے ہیں. اور یہ سچائی ہے کہ والدین اپنے بچوں کے لیے سب سے اہم ہوتے ہیں, اور بچے والدین کے لیے سب سے اہم ہوتے ہیں. تو جو چیز ایک دوسرے کے لیے سب سے اہم ہے اس کے متعلق کیا سوچ رکھنی چاہیے انسان کو, اس کے متعلق کیا سوچنا چاہیے, کیا باتیں کرنی چاہیے, کیسا مزاج ہونا چاہیے, یہ بہت اہم بات ہے. میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں, کیا والدین بھی بیٹھی ہوئی ہیں, والد بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کیا آپ میں سے کوئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچے کے لیے دعا کی ہو کہ بیٹا میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ ترقی دے, اللہ آپ کو آگے بڑھائے. یقیناً دعا یہ والی سب کرتے ہیں, لیکن یہ کہہ کر اپنے بچے کو سامنے بٹھا کر کہ بیٹا میں آپ کے لیے دعا کرنے جا رہا ہوں اس وقت, آپ میں سے کوئی ہے ایسا جس نے اپنے بچے کو سامنے بٹھا کر اس کے لیے دعا کی ہو؟ آپ ایک ہیں, اپنے بچے کو سامنے بٹھا کر آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہیں. اور کون ہے ایسے جو اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اچھا, مردوں میں سے کم ہے, عورتوں میں سے زیادہ ہے. دیکھو دعا سب لوگ کرتے ہیں, میں صرف دعا کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں دعا میں ایک لفظ اور ایڈ کر کے بتا رہا ہوں. میں یہ لفظ ایڈ کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ چیز اپنے بچوں کو باور بھی کرائیں کہ بیٹا ہم آپ کی فکر میں رہتے ہیں, ہر وقت ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں, ہم آپ کے لیے کوششیں کرتے ہیں. یہ بچے کو فکر ہونی چاہیے, اس کے سامنے آنی چاہیے یہ بات کہ ہمارے والدین ہمارے لیے کتنے فکر مند ہیں, ہمارے والدین ہمارے بارے میں کتنا سوچتے ہیں. یقیناً کھانے پلانے کی ذمہ داری والدین کی ہے, وہ کرتے ہی ہیں اس کام کو, دعا بھی کرتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں, اقدام بھی کرتے ہیں, لیکن بچے کو باور نہیں کراتے. بچے کو باور کرانا ضروری ہے, محبت کا اظہار ضروری ہے. محبت تو سبھی کرتے ہیں, اللہ کی طرف سے دل میں ڈال دی گئی ہے محبت بچوں کی, لیکن وہ محبت ظاہر ہونی چاہیے. بچوں کو بتائیں سامنے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. ایک اور تیسری بچی ایک اور کھڑی ہے, اسی طرح کچھ بات اس کی بھی ہے, وہ بھی اپنے والدین سے کچھ کہنا چاہتی ہے, بلکہ تمام لوگوں سے کچھ کہنا چاہتی ہے. اس کی بات بھی ذرا غور سے سنیں.
हेलो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे अपने अम्मी अब्बू से कुछ कहना है। अम्मी अब्बू, आज जो मैं आपके सामने कहने जा रही हूँ, हो सकता है आपको मेरी इन बातों का बुरा लगे, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी इन बातों का बिल्कुल बुरा न माने। अम्मी, आप मेरे लिए दी गई अल्लाह की तरफ से एक अजीम नेमत है। अम्मी, आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं और मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अम्मी, आप मुझे इसलिए पसंद हैं क्योंकि आप मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करती हैं, चाहे वो घर के ताल्लुक से हो या बाहर के ताल्लुक से, और मेरी हर तकलीफ में मेरा साथ भी देती हैं। लेकिन अम्मी, आपकी एक आदत मुझे बहुत नापसंद है। वो ये है कि जब मेरा इम्तिहानों का रिजल्ट आता है तो आप मेरा रिजल्ट देखने से पहले मेरी सहेली का रिजल्ट देखती हैं और हर बार उसके नंबरों की तारीफ भी करती है। अम्मी, यूँ तो मैं ज़हीन नहीं हूँ, लेकिन अपने नंबरों से आपको खुश करने की कोशिश करती हूँ। अम्मी, आपने मुझे कभी गिफ्ट नहीं दिया। जब मेरी सहेली कहती है कि मेरे अम्मी अब्बू ने मेरा रिजल्ट देखकर मुझे गिफ्ट दिया, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप मुझे कभी गिफ्ट ही नहीं देती। अब्बू, मुझे आपसे जो कहना है, अब्बू, आप मुझे इसलिए पसंद हो क्योंकि आपने हमें किसी चीज़ में कमी नहीं की, चाहे वो पैसे में हो या खाने पीने में। और अब्बू, आप मुझे इसलिए नहीं पसंद हो क्योंकि आप हमें जो कहते हैं उस पर हमें सख्ती से अमल करना पड़ता है और आप हमेशा मेरी गलतियों पर मुझे डांटते भी हैं। अब्बू, आपको इसी साल का एक वाक़या याद होगा कि हमारे स्कूल में एक तकरीरी मुकाबला मुनाकिद किया गया था, जिसमें मुझे हिस्सा लेने का मौका मिला था। उसकी तैयारी के लिए मेरे पास सिर्फ एक दिन था, इसलिए मुझे स्कूल के बाहर बैठकर उसकी तैयारी करने में बहुत देर लग गई थी। तैयारी करते करते वक्त निकल गया। जब मैं घर गई तो पता चला कि घर पे मेहमान आए हुए हैं। अब्बू ने कुछ पूछे बगैर मुझे डांटना शुरू कर दिया। अब्बू, अभी भी मुझे वो बात याद आती है तो मेरी दूसरे लोगों के सामने अपने बच्चों को डांटना, उनको मारना या इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना जिससे तकलीफ होती हो। वैसे तो अल्फाज गलत इस्तेमाल करना या डांटना अपने आप में ही एक मसला है, लेकिन दूसरों के सामने, दूसरे लोगों के सामने इस तरह की हरकत करना और उनको डांट डपट करना, इसके बड़े मनफी असरात पड़ते हैं बच्चे की ज़िंदगी पर। सच ये है कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि वालिदैन की ज़िंदगी में बच्चे और बच्चों की ज़िंदगी में वालिदैन सबसे अहम होते हैं। अगर ये एक सवाल किया जाए कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा एक कोई शख्स हो जो आपके लिए जान दे सकता हो, अगर ये वालिदैन से सवाल किया जाए कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स, बच्ची या बच्चा ऐसा हो जो आपके लिए जान दे सकता हो, तो यकीनन आपका जवाब आपकी औलाद होंगे। या अगर औलाद से ये सवाल किया जाए कि आपकी ज़िंदगी में अपने वालिदैन के लिए आप जान दे सकते हो, तो यकीनन उनका जवाब इस बात में होगा कि वो हाँ, यकीनन वालिदैन के लिए सब कुछ कर सकते हैं, वालिदैन बच्चों के लिए सब कुछ कर सकते हैं, बच्चे वालिदैन के लिए सब कुछ कर सकते हैं। फिर मसला क्या है कि परेशानी क्यों होती है, लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, ये परेशानियाँ तालीम और तरबियत से मुताल्लिक क्यों सामने आती हैं, आखिर इसकी क्या वजह है? वजह साफ है कि हम लोग खुद तरबियत याफ्ता नहीं है। ये बात याद रखिए कि यकीनन आपको जलील करने के लिए या कुछ बातें जहन में डालने के लिए इस तरह की नहीं बुलाया गया है। सच्चाई जो है उसको पेश करने के लिए बुलाया गया है। और अगर कोई भी शख्स अपने दिल पे हाथ रख के सोचेगा कि ये यकीनन सच है कि नहीं है, तो हर शख्स कहेगा यकीनन ये सच्चाई है। हम अपने बच्चों के साथ कैसा सलूक करते हैं और कैसा करना चाहिए, नबी की तालीम क्या है, तरबियत क्या है, इस सिलसिले में उस पर कोई गौर नहीं करता है। ऐसे एक बच्ची और है, इसको भी कुछ मसाइल है, ये भी कुछ कहना चाहती है अपने वालिदैन से। कहिए आप। अस्सलामु अलैकुम। मुझे अपनी अम्मी अब्बू से कुछ कहना है। अम्मी, आप मुझे बहुत पसंद हो और आप भी मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन आपकी अकादत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और आप तो अब्बू की छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बना देती हो। इसकी वजह से कई बार आप और अब्बू में झगड़े होते रहते हैं। इसका मुझ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मैं समझती हूँ कि अगर आप अपनी आदतों को छोड़ दो तो आप दुनिया की सबसे बेहतर माँ कहलाओगी। और अब्बू, आपका क्या नहीं, आप हमारी छोटी छोटी बातों को पूरा करने में दिन रात एक कर देते हो, लेकिन आपकी अकादत मुझे बहुत पसंद है कि जब आप घर आते हो हारे थके हुए लेकिन मुस्कुराते हुए, लेकिन आपकी अकादत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं।
آپ اپنا حکم ہم پر چلاتے ہو اور دینی پروگرام میں بھی کبھی جانے نہیں دیتے. میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ اگر آپ اپنا حکم ہم پر نہ چلاؤ تو آپ دنیا کے سب سے بہتر باپ کہلاؤ گے. میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ دنیا کے سب سے بہتر باپ کہلانے کے لیے تیار رہیں. ایک بات اور یہ سمجھ میں آئی ہے اس بچی کی بات سن کر کہ عام طور سے کچھ والدین تو ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ہر طرح کی اجازت دیتے ہیں اپنے بچوں کو, کچھ بھی کریں, کہیں بھی جائیں, کچھ بھی سوچیں, کوئی مسئلہ نہیں ان کے نزدیک. کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو اچھی چیزوں میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں, بری میں تو بنتے ہی ہیں, بننا ہی چاہیے, لیکن کچھ چیزیں اچھی ہیں جن سے فائدہ ہوتا ہے تعلیم کا اور تربیت کا, اس میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں. تو ایسا تو کم از کم نہیں ہونا چاہیے. جو بات صحیح ہو اس کو مانے, جو بات صحیح نہ ہو اس کو نہ مانے. ان بچوں کا مکالمہ تو ختم ہو گیا, لیکن چند باتیں اس مکالمے سے متعلق میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ماڈل بنیے, اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنیے. جیسا آپ اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں خاص طور سے تربیت سے متعلق, ویسا خود بن کے دکھائیے پہلے. جیسے والدین ہوتے ہیں یا اساتذہ ہوتے ہیں, بچے پر اس کی زندگی پر ضرور اس کا اثر پڑتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ بچہ جو چیزیں غلط سیکھتا ہے وہ کہاں سے سیکھتا ہے. بھئی خدا کی طرف سے تو دل میں القاء نہیں کی جاتی کہ وہ پیدائشی طور پر سیکھ کے آیا ہو, کہیں سے تو سیکھتا ہی ہے. گھر سے سیکھے گا, گھر والوں سے سیکھے گا, یا معاشرے کے لوگوں سے سیکھے گا, یا اسکول میں آ کے کہیں تو سیکھے گا نا. بہرحال اگر وہ مواقع میسر نہ آئے جہاں سے وہ غلط چیزیں سیکھتا ہے بچہ, تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. تو ایک بات تو یہ کہ ماڈل بنیے اپنے بچوں کے. دوسری بات یہ کہ اپنے بچوں سے رشتے مضبوط کیجیے. عام طور سے بہت سے والدین میں سے خاص طور سے والد شام کو اس وقت آتے ہیں جب بچے سو جاتے ہیں, اور صبح کو اس وقت چلے جاتے ہیں جب تک بچے اٹھتے نہیں ہیں. تو ملاقات کب ہوگی؟ ہفتے میں لیتے کہ ایک دن ہوتا ہے ان کے لیے ملاقات کرنے کا, اتوار کا دن یا جمعے کا دن یا منگل کا دن ہوتا ہے, اور اس میں بھی ان کے بہت سارے کام کاج ہوتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اپنے بچوں کو ہی وقت نہیں دے پا رہے. اپنے بچوں کو تو کم از کم وقت دیجیے, ان کے بارے میں سوچیے. وہ آپ کا درختہ وہ دل ہے, وہ آپ کی آخرت اور آپ کی دنیا ہے, سب کچھ تو آپ کا وہی ہے. اسی کے لیے وقت نہیں ہے تو پھر کس کے لیے وقت ہے؟ اولاد کے لیے نہ جانے انسان کیا کیا کرتا ہے, لیکن وہ چیز اس کو باور نہیں کراتا. باور بھی کرانا ہے, اس کے لیے وقت بھی نکالنا ہے. تیسری بات, وقت دیجئے, اس کے پاس بیٹھیے, اس کو اپنے پاس بٹھائیے, اس کی باتیں سنیے, اس کو اپنی باتیں سنائیے. چوتھی بات یہ ہے کہ جب اس کے پاس بیٹھیں اور اس سے باتیں کریں, اس کی باتیں سنیں, تو غور سے سنیں باتیں اس کو اہمیت دیجئے. اس کی باتیں سننے میں بچے کو اہمیت دیجئے. اور پانچویں بات یہ ہے کہ مثبت سوچ رکھیے. ہر بات کو غلط نہ سوچیے کہ بچہ غلط ہی کرتا ہے, صحیح کچھ کرتا ہی نہیں. صحیح بھی کرتے ہیں بچے, غلط بھی کرتے ہیں. اس لیے سوچ کم از کم مثبت رکھیے. اچھی بات پر حوصلہ افزائی کیجیے, غلط بات پر ٹوکا ٹاکی کیجیے. اگر یہ چھوٹے چھوٹے کام ہونے لگیں گے تو بہت جلدی بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے, بہت جلدی بچے اچھے بن سکتے ہیں. آپ لوگ بیٹا جائیے, کسی نے خوش ہو کر آپ کے پروگرام سے آپ کو 100 روپے انعام دیے, آپ لوگ تقسیم کر لینا آپس میں. ایسے ہی ایک پروگرام اور ہے تعلیم و تربیت سے متعلق, بس دو پروگرام بچوں کے باقی ہیں, اس کے علاوہ کچھ اور چیز باقی نہیں ہے. اس پروگرام سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی بچوں کا ایک ترانہ ہے جو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم مدرسہ جانا چاہتے ہیں. مدرسے سے متعلق ایک ترانہ ہے. میں چھوٹی سی بچی ہوں, میرا بچپن سہانا ہے. میں ان بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ترانہ پیش کریں. بابر یہ مارا میں ایک چھوٹی سی بچی ہوں, میرا بچپن سہانا ہے. پرندوں کی طرح مجھ کو ابھی تو چہچہانا ہے تم سے
तो चाहना है, मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ, मेरा बचपन सुहाना है, परिंदों की तरह मुझको अभी तो चाहना है। सूरत हाल तालीम से मुताल्लिक बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस कदर पिछड़े हुए हैं मुसलमान तालीम में। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का ये कहना है कि मुसलमान जिस वक्त मुल्क आज़ाद हुआ उस वक्त 52-53% थे हुकूमत में तालीम की वजह से, हुकूमत की नौकरियों में, और इस वक्त 2% भी नहीं है। 1% या 2% मुसलमान सिर्फ हुकूमत में रह गए हैं। उसकी वजह तालीम न हासिल करना है, तालीम हासिल करते नहीं, आगे बढ़ते नहीं है, इसलिए बहुत पीछे रह गए हैं मुसलमान। और हालांकि इस्लाम तो हमेशा ये कहता है कि तालीम हासिल करो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, लेकिन हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं, कोई कोशिश ही नहीं कर रहा उस काम के लिए। बस हमारे पास एक बहाना है, और वो बहाना ये है कि भाई पढ़ लिख कर क्या करेंगे, हुकूमत नौकरी तो देती नहीं है। ये एक बहाना है सिर्फ, और कुछ नहीं है। क्या हुकूमत ये कहती है कि आप अनपढ़ रह जाओ, आप तरबियत याफ्ता ना हो, तालीम याफ्ता ना हो? हुकूमत तो एक बहाना है सिर्फ। हम लोग खुद कामचोर हो गए हैं, हम लोग खुद काहिल और सुस्त हो गए हैं, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते बिल्कुल भी, वरना ऐसा नहीं है। अंसार शेख का नाम तो आपने सुना होगा, 21 साल की उम्र में वो IPS ऑफिसर बन गया, मुसलमान लड़का अंसार शेख, 21 साल की उम्र में सिर्फ तालीम की बदौलत, मेहनत की बदौलत ऐसा हुआ है, और किसी ने नहीं रोका उनको आगे बढ़ने से। कोई हुकूमत ये नहीं कह पाई कि आप IPS हो फिर भी हम आपको नौकरी नहीं देंगे। बना दिया गया उनको ऑफिसर, DM साहब या कुछ और पोस्ट तो मिल गई होगी। तो मालूम ये हुआ कि हम लोग अगर अपनी ये सोच बंद कर खत्म कर दें कि नहीं, हुकूमत का मसला ही छोड़ दें, हमें तो तालीम हासिल करनी है, और हम किसी मदरसा या स्कूल के एजेंट बन के बात नहीं करें कि आप हमारे स्कूल में बच्चों को भेजो या मादुलबाद में पढ़वाओ। नहीं, पढ़ाइए, बस कहीं भी पढ़ाइए, चाहे आप स्कूल में पढ़ाएं, मदरसे में पढ़ाएं, बाहर पढ़ाएं या अपने यहाँ इलाके में पढ़ाएं, कहीं भी पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाएं। अनपढ़ न रहने दे बच्चे को। ये इस्लाम की भी तालीम है और वक्त की भी ज़रूरत है, इसलिए ये कोई बहाना नहीं रह गया। आप इस बहाने को छोड़ दीजिए। तालीम और तरबियत में हम लोग किन किन परेशानी से दो चार हैं, उस प्रोग्राम को पेश करने के लिए मादुल बरात की छोटी छोटी बच्चियां हैं, तालीम और तरबियत से मुताल्लिक उनका एक छोटा सा प्रोग्राम है। वो बच्चियां आए और अपना मुकालमा नुमा जो उनका प्रोग्राम है उसको पेश करें। और आम तौर से होता क्या है, दो तरह के वालिदैन हैं पूरे माशरे में। एक वालिदैन तो वो हैं जो अपने बच्चों की पूरी निगरानी करते हैं, उनकी बात को तवज्जो से सुनते हैं और उनकी पूरी खैर खाई करते हैं। एक वालिदैन वो है जो बस काम चलाओ काम है उनका, बस जिस तरह चल रहा है तो चल रहा है, बच्चा स्कूल आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कोई मतलब नहीं, कोई परवाह नहीं उनको। एक वो है। तो दोनों का क्या नतीजा है और क्या फर्क पड़ता है बच्चे के ऊपर, क्या असर मुरतब होता है, वो बच्चियां पेश करेगी अपने इस मुकालमे में। आइए, वो बच्चे जो अभी थोड़ी देर पहले बिलवालिदैन इसाना वाला प्रोग्राम करके गए हैं, वो इधर आ जाएं। माँ जिनका प्रोग्राम था, माँ के उन्वान से, वो बच्चे इधर, लड़के MBB स्कूल के, वो इधर आ जाएं। चुरा ली तो मैंने उसके 2 थप्पड़ मारे और फिर अपनी पेन से रबड़ छीन ली तो मेरे टीचर ने 1 थप्पड़ मुझे मारा और वो दूसरे बच्चे के जिसने मेरी चोरी की थी, और फिर कहने लगी कि बच्चे चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना बुरी बात है, अच्छे बच्चे चोरी नहीं करते। अम्मी ये बताओ, बाजी ने चोरी करने से क्यों मना किया और चोरी करने से क्या होता है, और मेरी बाजी ने मुझे क्यों मारा? बेटा, आपकी बाजी ने आपको क्यों मारा? इसलिए मारा, आपकी बाजी ने आपको चोरी करने से इसलिए मना किया है क्योंकि चोरी करना गुनाह कबीरा है, कबीरा। चोरी करना इतना सख्त गुनाह है कि अल्लाह ताला ने इस गुनाह के बारे में आयत नाजिल की है, और वो आयत ये है, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, कि चोरी करने वाले मर्द और औरत के दुनिया में ही दोनों हाथ काट दिए जाए। बेटा, जो लोग चोरी करते हैं वो दुनिया में भी जलील होते हैं और अल्लाह की नज़र में भी गिर जाते हैं, इसलिए आपकी बाजी ने आपको मना किया है।
बेटा अगर आपको कुछ बनना है तो अपनी बाजी का कहना माना करो, उनकी इज्जत किया करो। अच्छे बच्चे वो होते हैं जो अपने बड़ों का कहना मानते हैं, और आप तो अच्छे बच्चे हो ना। बेटा आपके टीचर ने आपको इसलिए मारा क्योंकि आपने उस बच्चे को मारा और अपने टीचर से नहीं बताया। कोई भी बात अगर क्लास में हो तो अपने टीचर को बताओ, और अगर घर में हो तो हमसे बताओ। ऐसे एकदम किसी को नहीं मारना चाहिए। बेटा अगर आज क्लास में कोई बच्चा कोई गलत काम करेगा तो अपने टीचर से बताना। और हाँ आपके आज के बाद आप किसी को तो नहीं मारोगे, सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहोगे, ठीक है? ठीक है अम्मी जान। अच्छा बेटा ये बताओ कि आज आपने क्लास में क्या क्या पढ़ा है, और आपके बाजी ने आपको क्या क्या काम किया है, और आपको घर जाकर क्या करने को कहा है? अम्मी आज हमारे सब किताबों का सबक पढ़ाया गया है, और सब किताबों में काम भी दिया गया है। और हमारी बाजी ने कहा है कि बच्चों घर जाकर अपनी अम्मी से कहना कि वो आपका काम पूरा करा दे, और वो कल आपको मदरसा भेजे और अपना सबक भी याद करा कर लाना है। अम्मी आप मेरे सबक भी याद कराओगी ना? हाँ बेटा जरूर कराऊंगी। अच्छा बेटा ये बताओ कि आज के सबकों में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? अम्मी आज हमारी बाजी ने हमें बहुत अच्छी हदीस सिखाई है। हमारी बाजी ने हमें जो हदीस सिखाई है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो क्या है बेटा, जरा मुझे भी सुनाओ ना। चलो मैं आपको अभी सुनाता हूँ। हदीस नंबर 3, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। अच्छा बेटा जब आपको ये हदीस बहुत अच्छी लगी तो आप ये बताएं कि आप इस हदीस से क्या समझे? मैं समझा मुझे भी कुरान सीखना और सिखाना है ताकि मैं बेहतर इंसान बन सकूं, जो क्या मुझे बनाना चाहती है, और मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ये हदीस पसंद आई। और हाँ अम्मी बाजी कह रही थी कि जो बच्चे घर पढ़ते हैं, जिनके अम्मी अब्बू ने घर पर पढ़ाते हैं, वही बच्चे आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा आपकी बाजी ने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं भी अपने बेटे को इसीलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि मुझे भी अपने बच्चे को एक अच्छे अखलाक वाला इंसान बनाना है। ठीक है पहले आप नमाज पढ़ कर आओ, इतना मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है अम्मी जान मैं अभी आता हूँ। एक किरदार तो ये है वालिदैन का, पर गौर करते हैं कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, बाजी ने क्या कहा है, पढ़ाने वालों ने क्या कहा है, तो वो अपनी तरीके से सुलझाते हैं मसले को और बच्चे की सही रहनुमाई करते हैं, सही तरबियत करते हैं उसकी। एक इसका बिल्कुल बरखिलाफ, इसका बिल्कुल उल्टा है कि दूसरे वालिदैन किस तरह के होते हैं, वो ये बच्चियां पेश करेंगे। किचन में रखा है जा, और मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, पहले मेरी बात सुनो। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं कुछ जरूरी बात कर रही हूँ? जाओ किसी और से बात करो, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। ठीक है आपको तो मेरी कोई बकवास नहीं सुननी, मैं अभी अब्बू साहब की शिकायत लगाता हूँ। अब्बू पहले मेरी बात सुनो। अम्मी को तो मेरी कोई परवाह नहीं है और नहीं उन्हें मेरी कोई बात सुननी है। अरे तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं फोन में कुछ चीज तलाश कर रहा हूँ? जा जाकर किसी और से बात कर। यार अफजल क्या हुआ, क्या बात है, तो इतना परेशान क्यों है? यार एक बात बताऊं, अगर मैं कुछ अपनी अम्मी से कहता हूँ अम्मी मेरी बात नहीं सुनती, अगर अब्बू से कहता हूँ अब्बू मेरी बात नहीं सुनते। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? यार हम है ना तेरे दोस्त, तू हमें बता। आज पता क्लास में क्या हुआ? एक बच्चे ने मेरी पेंसिल और रबड़ चुरा ली, फिर मैंने उसको 2 थप्पड़ मारे और अपनी पेंसिल रबड़ छीन ली। फिर मेरी टीचर ने 2 थप्पड़ मुझे मारे, और जो दूसरा बच्चा था जिसने मेरी पेंसिल और रबड़ चुराई 2 थप्पड़ उसको मारे। यार एक काम का, कल तू भी उस बच्चे की पेंसिल और रबड़ चुरा लेना और फिर लाकर हमें दे देना। और हाँ जब तू उस बच्चे की पेंसिल चुराएगा ना तो छुट्टी में चोरी करना और फिर अगले दिन लेकर मत जाना। जब टीचर तुमसे पूछे तो कह देना कि मेरा बैग चेक कर लो, और जब तेरे बैग में कुछ नहीं मिलेगा तो तेरी टीचर तुझको कुछ नहीं कहेगी। यार एक बात बता, मेरे टीचर ने तुम चोरी करने से मना किया था। यार ये टीचर तो ही बकवास करती रहती है।
ये मुकालमा जो दूसरी बच्चियों ने पेश किया है, जो दूसरा इसका हिस्सा था, उससे ये बात साबित हुई कि कुछ शिकायतें बच्चों को वालिदैन से, कुछ वालिदैन को बच्चों से शिकायत है। वालिदैन को तो ये शिकायत है कि बच्चे हमें परेशान करते रहते हैं हर वक्त, कुछ सुनने नहीं देते, कुछ करने नहीं देते, घर में आओ तो हम उनसे परेशान हैं। बहुत से वालिदैन स्कूल में बच्चों को भेजते ही इसलिए हैं ताकि हमारी जान छूट जाए, बच्चे हमें परेशान ना करें, मदरसे में जाए उनको जाके परेशान करें, हमारा मसला कम से कम खत्म हो। कुछ तो वालिदैन ये सोचते हैं। बच्चों को ये शिकायत है कि चूंकि बच्चा बहुत छोटा होता है तो जो चीज वो नई बात सीखता है उस बात को दूसरों को बताना चाहता है। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, हाजी जी तशरीफ ले आए, ऊपर स्टेज पर तशरीफ ले आए। बच्चों का ये मसला है कि बच्चा जब भी कोई नई बात सीखता है तो वो किसी को उस बात को बताना चाहता है। अगर वो बात उसकी ना सुनी जाए, वालिदैन उस पर तवज्जो ना दे, घर के लोग उस बात को ना सुने, तो फिर वो क्या करेगा? अपने दोस्तों को बताएगा। और दोस्त तो बहुत कम होते हैं जो खैरखा होते हैं, दोस्त तो उल्टी सीख देते हैं। जैसे अभी इस बच्चे ने बताया कि चोरी करो, कुछ भी करो, क्लास में जाओ कि ना जाओ, पढ़ो ना पढ़ो, उनसे क्या बहस है? वो क्या करते हैं? वो तो कुछ सोचते नहीं इस बारे में। इसलिए मेरी बहुत अदब से आपसे गुजारिश है कि जितनी बातें इससे पहले मुकालमे में और इस मुकालमे में पेश की गई हैं, उनका ताल्लुक यकीनन हम लोगों से है। घर में ये सारी बातें हमारे सामने पेश आती हैं। कुछ बातें आपके दिल में अपने बच्चों से मुताल्लिक हैं, वो दिल में ही है, आप नहीं करते वक्त अपने बच्चों से। कुछ बातें बच्चों के दिल में है जो वालिदैन से नहीं करते हैं। इसलिए खुलकर बात कीजिए अपने बच्चों से, उनसे अपना रिश्ता मजबूत बनाइए, उनकी बातें सुनिए, अपनी बातें उनको सुनाइए, फिर बिल्कुल खुशगवार रहेंगे। खुशी किसे कहते हैं? सुख किसे कहते हैं? सुख रहेंगे, फिर सुखी रहेंगे सब लोग। अगर सुखी रहना चाहते हैं तो अपने बच्चों से रिश्ते उस्तवार कीजिए। अब तक जितना ये प्रोग्राम चला वो सब बच्चों से मुताल्लिक था, बच्चों की बातें आपके सामने पेश की गई थी। अब चंद एक मेहमान हमारे हैं, एक दो मेहमानों के तासुरात हम सुनना चाहेंगे, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि हम सब के लिए खुशी की बात है कि हमारे आज के इस प्रोग्राम में दो बहुत अहम शख्सियत तशरीफ लाई हुई हैं, एक लाने वाली और एक ला चुकी हैं। हमारे शहर के बहुत ही मशहूर और मारूफ डॉक्टर नौशाद साहब हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। हिंद पैथोलॉजी चलाते हैं आप, और तालीमी मैदान में ख़ास दिलचस्पी और तवज्जो रखते हैं, और उसी मैदान के आदमी हैं आप, वो हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। ऐसे ही हज़रत मौलाना वसी सुलेमान साहब नदवी इंशाअल्लाह तशरीफ लाने वाले हैं बहुत जल्दी। उनका मुख्तसर 10 मिनट का बयान होगा, ऐसे डॉक्टर साहब का 2-4-5 मिनट का बयान होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गुज़िश्ता साल जितनी बातें हमने आपसे की थी, हाजिरियों से मुताल्लिक, बच्चों के आने जाने से मुताल्लिक, रिजल्ट से मुताल्लिक, उनमें बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत तरक्की हुई है। बच्चों टेबल छोड़ दो, हिंदी है, आगे को बहुत तरक्की हुई है। हम सब के लिए खुशी की बात यह है कि इस साल हमारे पास ऐसे कम से कम 60 बच्चे हैं, 60 बच्चे कम से कम ऐसे हैं जो पूरे साल मुस्तकिल मिजाजी के साथ मदरसे में तशरीफ लाए हैं। एक दिन भी उन्होंने गैरहाज़िरी नहीं की है, न दरख्वास्त दे के गैरहाज़िरी की है, न बीमारी की छुट्टी की, न शादी की छुट्टी की है। मुस्तकिल 60 बच्चे कम से कम ऐसे हैं जो मुस्तकिल मदरसे में आए हैं। बारिश उनको रोक ना सकी, बीमारी उनको रोक ना सकी, या घर के कुछ मसाइल उनको रोक ना सके, मुस्तकिल आए हैं 60 बच्चे। हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और उनके वालिदैन को भी मुबारकबाद पेश करते हैं, और इंशाअल्लाह उनकी हौसला अफजाई के लिए कुछ पेश किया जाएगा। कबल इसके कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर नौशाद साहब मैं आपको उनके रूबरू कराऊं, इससे पहले मैं मुनासिब समझता हूँ वो प्रोग्राम जिसका उन्वान वबिल वालिदैन इहसाना था, वो उस वक्त साउंड की नज़र हो गया था। अब मैं चाहता हूँ कि 5 मिनट के लिए वो बच्चे आए और माँ का क्या मकाम है, माँ से मुताल्लिक बच्चे क्या सोचते हैं, माँ का क्या असर मुरतब होता है बच्चों की ज़िंदगी पर, वो प्रोग्राम दोबारा पेश करें। अभी